Very pleasant morning to all my lovely students. As you know that we are doing chapter number 3, the ruling the countryside. After the Battle of Plassey, Battle of Buxar, the Bengal was under the British. जो Bengal था उसका revenue system was the under of Britishers. Now they are the Nawab of the Bengal. Earlier we have discussed first. I am explaining the previous topic which we have discussed previous. First topic we have discussed that the company becomes Diwan. How the company Diwan means the financial authorities come with the Britishers. जितनी भी फाइनेंशियल अथॉरिटीज थी, रेवेन्यू कलेक्ट करना, वो सारा किसके अंडर में आ गया? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी. नेक्स्ट टॉपिक वाज रेवेन्यू फॉर द कंपनी. नाउ they are trying. Who is trying? East India Company's official are trying that collect more and more revenue from the farmers, peasants. Just because our topic is countryside. Countryside means village area, rural area, which was now under the Britishers. Fine. So they are trying to collect the more and more revenue. Next topic which we have discussed that the needs of the improved agriculture. When they are starting to collecting the revenue, they feel there are some reforms are necessary in the agriculture. उन्हें ऐसा लगा कि कुछ reforms करने चाहिए. Now reforms was not for the favor of the peasants. They are favor for the Britishers, just because if they reform the all things, so they can increase the production, and production increase it means their revenue also increase. अगर production बढ़ता है तो revenue भी increase होता है. Fine. So they need that improve the agriculture. Next is the problems. Now what the problems? Which problems? In section we have discussed about the zamindar. zamindar ये हिंदी term है. Zamindars were facing so many problems to collecting the revenue. In section I have explained the great famine was occurred that time. The situation was the peasants was very worse. इतना ज़्यादा जो famine हुआ था उस वक्त का सबसे बड़ा famine था. And जिससे कि उनकी जो problems है peasants, they are not able to pay the tax just because the natural calamities. So zamindar had faced so many problems to collect. Now how they collect the taxes? Now Britishers are forced to the zamindar to collect the revenue, and zamindars are not able to collect the tax. So what problems? They have taken their zamindaris. उनका जो जमींदारी का जो ऑर्डर था उनसे ले लिया गया. So many problems faced by the zamindar. Now a new system is devices में new system में we have discussed about the Maharwari system. Mahar means village, and next was the Munro system in which Rewari settlement introduced. Now we have also compared the both settlement and the question answers I will also explain and tell the differences of the both settlements. Now today's topic is lecture 2 है ये हमारा. जो topic is the crop for Europe. Now we are talking about the main topic of this chapter. कि कौन-कौन सी crops जो है इंडिया में grow होने लगी, जिससे force किया गया, peasants are forced to grow that crops. Now there are some crops are mentioned. बहुत सारी crops है, but we have discussed about the one major crops was indigo. Remember this. Fine. Indigo was the major crop which were grown into India in that time. वो उगा नहीं रहे थे. They are not growing. They are forced to grow the indigo. Now what is the indigo? Indigo was a plant which produced the blue color. एक ऐसा plant जो कौन सा color produce करता था? Blue color. Fine. And this color is used to dye the cloth. इस जो इंडिगो क्रॉप से जो कलर प्रोड्यूस होता था, जो उससे क्या किया जाता था? कलर किया जाता, डाई किया जाता था. और दैट टाइम्स आवर कॉटन टेक्सटाइल्स वाज वेरी पॉपुलर. इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था.
सो उसकी डिमांड जो थी यूरोप में सबसे ज्यादा थी। किस क्रॉप की? इंडिगो। ये याद रखेंगे। इंडिगो वाज द प्लांट which produced the blue color. Now, why the demands of Indian indigo? अब इंडिया में जो इंडिगो ग्रो हो रहा था उसकी डिमांड क्यों बढ़ रही थी? नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना हमने सेक्शन किया हाउ दे आर कलेक्टिंग रेवेन्यू। नाउ दे कम टू देयर प्रोफेशनल्स। इट मींस द डिमांड रिच ब्लू कलर वाज कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। जो रिच कलर था ब्लू, इट वाज आल्सो कॉल्ड द इंडिगो। एंड द इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द 19th सेंचुरी। यानी कि 19th सेंचुरी में जो सबसे बड़ा सप्लायर था किसका? इंडिगो का वाज द इंडिया। Fine. Now India was a big supplier just because the Britishers are forcing to the peasants to grow the indigo crops in India. Fine. So they are depending for the indigo. They are depending for indigo from the Indian peasants. So किस पर depend है? Indian peasants पे. Now next topic is Britain turns to India. Fine. Britain turns में यहाँ पे हम we are discussing about the indigo के लिए वो किस तरह से डिपेंड हुए किस पर? इंडिया पर। Indigo cultivation in Bengal expanded rapidly by the 1810. हम यहाँ से स्टार्ट करें। ब्रिटिशर्स ने कहाँ से स्टार्ट किया? बंगाल से। जस्ट बिकॉज बंगाल वाज द अंडर ऑफ द ब्रिटिशर्स, सो दे आर स्टार्टिंग इंडिगो कल्टीवेशन फ्रॉम बंगाल रैपिडली। एंड बहुत तेजी से इंडिगो का जो है प्रोडक्शन स्टार्ट किया उन्होंने 1810 में। 95% ऑफ द इंडिगो इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। यानी कि 95% जो इंडिगो जो था ब्रिटेन को कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे, कहाँ से ला रहे थे? फ्रॉम द इंडिया। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट डिमांड्स ऑफ द इंडिगो। नाउ अबाउट द इंडिगो, क्लोडाइन however preferred indigo was a dye. इंडिगो जो था एक डाई था। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर। ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करता था? ब्लू कलर। फाइन। Where the dye from the wood and pale and dull. By the 17th century, European cloth produced the pursued their government to relax the ban on indigo imported. अब वहाँ पर क्या किया? यूरोप में इंडिगो को ग्रो करने पर बैन लगा दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीजें बताना चाहूंगी कि क्रॉप्स तो बहुत सारी ग्रो हो रही थी, तो क्या प्रॉब्लम थी इंडिगो को ग्रो होने में? और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट भी दिया जा रहा था किसे? इंडियन पीजेंट्स को, क्योंकि उसकी बहुत डिमांड थी। कई सारे ऐसे ब्रिटिशर्स थे जो यहाँ पर सेटल्ड हो गए, यहाँ पर उन्होंने लैंड खरीद लिया, परचेज कर लिया और यहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन करने लगे या फिर करवाने लगे। इसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा क्या होता था? प्रॉफिट। बट इंडिगो एक ऐसा क्रॉप था कि उसको एक दो बार अगर ग्रो कर लिया जाता था तो वो लैंड जो था वो फर्टाइल नहीं रहता था और उसके बाद उस लैंड पर कोई दूसरी क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती थी। तो पीजर्स वर वेरी सफर। पहले तो उन्हें प्रॉफिट दिख रहा था, उन्हें फोर्स भी किया जा रहा था, बट दीज क्रॉप्स आर वेरी हार्मफुल फॉर देयर लैंड। उनके जो लैंड है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी। अब जब ब्रिटेन टर्न हो गए इंडिया पर, इसको हम प्लांटेशन कह सकते हैं। प्लांटेशन में क्या होता है? व्हेन वी ग्रो क्रॉप फ्रॉम द प्रॉफिट, इट वाज कॉल्ड अ प्लांटेशन। Now, one topic is how was the indigo cultivated. Next topic है आपका how was the indigo cultivated, कि किस तरह से इंडिगो को क्या किया जाता था? कल्टीवेट। फाइन। So there is two cultivation system, niche cultivation and rayoti cultivations. याद रखेंगे, niche cultivations and rayoti cultivation. Now I am explaining both terms. The प्रॉब्लम्स, इसलिए कि प्रॉब्लम्स दोनों में थी, पर पहले हम ये समझेंगे कि निच कल्टीवेशंस क्या थे और रेयोटी कल्टीवेशंस क्या था। फाइन। सो फर्स्ट अबाउट द निच कल्टीवेशन। फाइन। निच कल्टीवेशन, अंडर द निच कल्टीवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड दैट डायरेक्टली कंट्रोल। ये वो लैंड थे, निच यानी होता है अपना, ठीक है। ये जो लैंड थे वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में थे? लैंड
यानी वो खुद ही ऑनर करते थे, सारी चीजों को खुद ही मैनेज किया करते थे। फाइन। एंड डायरेक्टली कंट्रोल, दे प्रोड्यूस इंडिगो बाय द डायरेक्टली एम्प्लॉयड हायर ओनर, और डायरेक्टली उसको वो सेल भी करते थे। तो ये थे निश कल्टीवेशन। नाउ अबाउट द रियोटी कल्टीवेशंस। अंडर द रियोटी सिस्टम द प्लांटर फोर्स टू रियोट टू असाइन अ कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट साइन करना पड़ता था रियोटीज को। Those who sign the contract go cash advance in the low rate interest on the terms they have to cultivate indigo on the last 25% of the land holding। अब यहाँ पर देखिए रियोटी में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उसमें आपको क्या दिया जाएगा, एडवांस मनी दिया जाएगा, लेकिन आप अपने लैंड पे कम से कम 25% पार्ट पर क्या ग्रो करेंगे, इंडिगो। फाइन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाट प्रॉब्लम्स फेस बाय द निच कल्टीवेशंस एंड व्हाट प्रॉब्लम्स फेस बाय द रियोटी कल्टीवेशन। देखिए दोनों ही जो कल्टीवेशन है डिफरेंट है। वन इज द इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट कर रहे हैं सारा चीजें। सेकंड है आपका जो कॉन्टैक्ट बेस पर है, रियोटी। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द व्हाट प्रॉब्लम्स फेस बाय द रियोटी एंड निच कल्टीवेटर्स। So students, now we are trying to understand what was the problems faced by the niche cultivation and the riyoti cultivation. Now first niche cultivation was the independent cultivators and riyoti was the contract based. Find it, ये आपको याद रखना है। Now I have written some points in which if you read in the easy way, it is very easy for you to understand it. Fine. So first we will talk about the niche cultivators. Fine. Planters found it difficult to expand the area. Fine. सबसे पहली बात, niche cultivators land was fixed, so they can't expand their land and expand their cultivation. Fine. Second was difficult to mobilize vast number of labor for plantation, कि जितने भी निच कल्टीवेटर्स थे उन्हें इस चीज के लिए मोबिलाइज करना यानी कन्वेंस करना कि वो क्या करें, प्लांटेशन करें किसका, इंडिगो का, यानी उन्हें कन्वेंस करना ये बहुत ज्यादा क्या था, मुश्किल था। जस्ट बिकॉज मोस्टली फार्मर्स वर ग्रोइंग राइस, बंगाल जो है वहाँ पे राइस बहुत ज्यादा ग्रो होता है, तो मोस्टली जो farmers they were growing the rice. So for the niche cultivators it was very difficult to convince them for growing the indigo. Fine. Second topic. Now third is it difficult to large scale plow and bullock required in the niche cultivations. अब niche cultivations में जो भी इंडिगो ग्रो कर रहे थे उन्हें एक लार्ज यानी बहुत ज़्यादा प्लाउइंग की और बुलर्स जो है एजुकेशन में, इसमें एग्रीकल्चर में जो ये यूज़ होते हैं, उनके लिए ये अरेंज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दे हैव सम लिमिटेड रिसोर्सेज। इनके पास रिसोर्सेज जो क्या थे, लिमिटेड थे, मनी भी क्या था, लिमिटेड था, बट दे आर ट्राइंग टू ग्रो द इंडिगो फॉर द प्रॉफिट। So they are facing these problems. Again I am repeating, planters found it difficult to expand the area. First they are not, they can't increase their land. अगर increase नहीं हो रहा था तो production भी उतना ही था। Difficult to mobilize a vast number of laborers for the plantation के लिए, plantations के लिए agree करना, it was very difficult just because they all are growing। इसको आप add कर सकते हैं, यहाँ पर वो क्या grow कर रहे थे, rice। Mostly they are growing the rice, so they are not interested to grow the indigo. Second was they have not they have limited sources and it means indigo require a large scale plow and bullock carts requires in the niche cultivations. Fine. So these problems faced by the niche cultivation. Now about the riyoti cultivations. Listen carefully. Peasants got a very low price for the indigo. First niche cultivation was based on the contract base. Contract base पर
रेयोटीज जो है उन्हें क्या देते थे, मनी देते थे एज अ लोन। उसके बदले उन्हें कितने परसेंट पार्ट, एटलीस्ट 25% जो पार्ट था उनके लैंड का, उस पर क्या ग्रो करना होता था, इंडिगो। फाइन। सो फर्स्ट दे आर गॉट वेरी लो प्राइस। अभी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता था, लोन दिया जाता था उन्हें, फाइन, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के रूप में वो क्या करते थे, फिक्स प्राइस डिसाइड कर देते थे कि जो भी इंडिगो वो ग्रो करेंगे उसका इतना प्राइस वो देंगे। बट उनको बहुत ही कम प्राइस, जितना वो ग्रो कर रहे थे उसका बहुत कम प्राइस जो है पीजेंट्स को मिलता था। पीजेंट्स को कोई फायदा नहीं था। नेक्स्ट, दिस साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। अब वो बार बार उनको लोन देते थे और वो कल्टीवेशन करते थे। कल्टीवेशन का जो है उनको बेनिफिट नहीं मिलता था तो वो फिर से लोन लेते थे, यानी एक साइकिल ऑफ लोन। उनका लोन कभी खत्म ही नहीं होता था, हमेशा वो लोन लेते थे, कल्टीवेशन करते थे, कोई प्रॉफिट नहीं होता था, फिर से लोन लेते थे। तो कभी खत्म न होने वाला लोन जो था निच कल्टीवेशन जो थी वो फेस कर रहे थे रेयोटी। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज इंडिगो हैड डीप रूट्स। इंडिगो की जो रूट्स होती थी वो डीप होती थी। ऐसा अभी मैंने कुछ टाइम बताया कि जो इंडिगो है उसको ग्रो करने के बाद जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं रहता है, ठीक है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। इंडिगो हैड डीप रूट्स, इट एग्जॉस्टेड द सॉइल फर्टिलिटी, कि उसको उगाने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो क्या हो जाती थी, कम हो जाती है। सो ये भी प्रॉब्लम्स थी किसके साथ, रेयोटी कल्टीवेशन के साथ। लास्ट, आफ्टर हार्वेस्टिंग द लैंड कुड नॉट बी सोन विद द राइस, यानी कि कल्टीवेशन के बाद इंडिगो को कल्टीवेट करने के बाद उनका जो लैंड है उसमें वो राइस ग्रो नहीं कर सकते थे, जस्ट बिकॉज द सॉइल लॉस्ट देयर फर्टिलिटी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किसको फेस करनी पड़ी, रेयोटी कल्टीवेटर्स को भी एंड निच कल्टीवेटर्स को भी, जस्ट बिकॉज दे बोथ आर फोर्स्ड टू ग्रो द इंडिगो। So these are the points, some points which we have discussed today. First we have discussed about the crops of for indigo. कौन सी crops उगाएंगे, jute, sugar cane, wheat, cotton, rice. But हमने यहाँ पे main topic किसकी बात की, indigo. Fine. Indigo क्या था? Indigo was the plant which produced the blue color. कौन सा कलर प्रोड्यूस होता था, blue color, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी टेक्सटाइल्स में, क्योंकि इसे डाई करने में यूज होता था। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, यानी ब्रिटेन किस पर डिपेंड हो गया इंडिगो ग्रो करने में, इंडिया ने यहाँ पे फोर्स किया जाने लगा फार्मर्स को क्या ग्रो करने के लिए, इंडिगो। उसके बाद हमने टू टाइप्स का यहाँ पे कल्टीवेशन पढ़ा, निच कल्टीवेशन एंड रेयोटी कल्टीवेशन। फाइन, ये प्रॉब्लम्स थी जो हमने डिस्कस की, रेयोटी कल्टीवेशन की एंड निच कल्टीवेशन की। So students, I hope these all points are clear to you. In next chapter I will discuss the blue rebellion and after, कि blue यानी कि फार्मर्स जो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, इतनी ज़्यादा क्योंकि उनका जो लैंड था वो अनफर्टाइल हो गया, उन्हें फोर्स किया जा रहा था। तो ब्लू रिबेलियन नाम से टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको डिस्कस करूंगी। सो लर्न ऑल टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।